Student friend follower, in today's session, you people will learn about code switching. You'll be learning about code mixing, code switching, and code mixing. Then I'll teach you about code switching versus code mixing. There is difference between code switching and code mixing. And what are the needs of code mixing and code switching? You living in a bilingual society, you living in such a society where multiple languages are being spoken, then sometime you have to shift from one language to another language. Especially in Pakistan, if you see, people are shifting from Urdu to English. They are going from Urdu to English. Why they are going? Sometime they are going to show status, sometime they are going to show relation with this rich community that we belong to that culture. We know culture of English and it is advanced culture, and they show some association. So in a way to show association, in a way to show authority, in a way to show they are educated enough, in a way to show that they are having good knowledge as compared to the person they are speaking. They show that they even show their superiority complex. They are in complex and they shift from one language to another. Sometime your tongue is slipped and you are speaking. While speaking, you automatically started speaking English, because all the time you're speaking English. And what happens? You started speaking language, even you don't know you have shifted from one to another language. So this phenomena, especially in social linguistic, this phenomena is studied in social linguistic. In social linguistic, we study code switching, code mixing, bilingualism, plurilingualism, multilingualism, and even we study about the dialects and certain varieties in English language. In social linguistic, we study what is Creole, what is Pidgin, what is register, what is sociolect, what is idolict, what is dialect, what is standard language. So if you are talking according to the received pronunciation, or according to the standard, by following the standard institutions of the British, you are speaking in standard accent. And what is a standard accent? Standard accent, you receive accent from London School, you receive accent from Oxford University, you received accent from BBC, you received accent from Cambridge. So like this university, these are the standard university of British. Once you follow, you are talking in a standard accent. So here, code mixing and code switching. Code mean language. When you entirely shift from one language to another language, it is known as code switching. But once you are within the language, you are just involving phrase, or you are mixing at sentence level or mixing at phrase level. So this phenomena will be known as code mixing. Code mixing means you speaking language, Urdu language, and you are involving certain words from English language. It is what known as code mixing. Code mean language, mixing. You are mixing one language with another. But once you are entirely shifted from one language to another language, this phenomena is known as code switching. I hope you got the point. Can you repeat what I have said now? Ji sir, what I got that if code switching, yeah. So in code mixing, that I got that if we are, for example, we have atmosphere in our surrounding, we used to talk in or speak in English. So what happens if our mother language is Urdu or another one Punjabi? So utterly I will start English in that talking. But what is code switching? In code switching is it is code mean language, and code switching mean is that entirely I will change my language mean from English to Urdu or Urdu to English. Is it, sir? Yes, listen to me now. That will be giving you more understanding. Look, you are talking in L1, which is Urdu, and your second language is which is known as embedded language.
Language you are going to mix in a way to show some superiority, in a way to show some association with other people, or you are having certain purpose in your mind. While you speaking, you have certain purpose. You show certain purpose. For example, you are speaking English for the directive purpose, for emphatic purpose, for expressive purpose, even for reflective purpose, referential purpose, and even there is your phatic purpose. There are certain purpose to talk other language. Language in which you are talking, it is known as metric language. I mean to say, language which is dominant one. Language which is dominant. For example, you know Urdu very well, and you are embedding another language which will be ultimately known in the term of linguistic, it will be known as embedded language. Language you are involving with your dominant language, which is metric language. Metrics mean dominant language. Embedded mean what you are going to join, what you going to refer while you talking in the dominant language. You sometime involve. What we will say, Metrics. metric language, it is a dominant. It's a dominant and the second one, how to pronunciate embedded. M? Embedded. I write spelling for you. Don't worry. Embedded. 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 EMBEDD. Embedded language मैं लिख देता हूँ. Embedded L और matrix L. Matrix language is a dominant one, and you are involving. For example, I am speaking. I have understood English. You understood ना? I am talking in English कि तुम्हें. I am talking to you. दरवाज़ा खोल दो. मैं कह रहा हूं ओपन द डोर. मतलब इसमें एक क्या है, मैट्रिक्स लैंग्वेज है जो कि जिसमें कन्वर्सेशन चल रही है, जो डोमिनेट है, और जो इन्वॉल्व कर रहे हो वो क्या होगी, एम्बेडेड लैंग्वेज. एम्बेडेड, वन इज एम्बेडेड एंड अदर इज मैट्रिक्स. And always, whenever you are going to join other language, there will be one matrix language and other embedded language. Matrix language is known as dominant one. Maybe you know little about Spanish language, and people are, they are fond of Spanish language, and you are talking in English, which is a dominant language. And in a way to show association with the Spanish people, you started involving certain words from Spanish language. So while you are showing for emphatic purpose, for phatic purpose, for expressive purpose, for referential purpose, there are a lot of purpose. I'll be explaining each and everything. So for certain purpose, you involve these language which are known as embedded language. Embedded language ऐसी language जो आप involve करते हैं association के लिए, जोर देने के लिए, पोइटिक या कोटेशन बताने के लिए. बाज़ औक़ात देखें हम कोटेशन, मतलब मैं बताता हूँ, जब मैंने लोगों को इम्फेसाइज करना होता है या इंग्लिश के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती है, तो क्या हम करते हैं, हम इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं. उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश में आ जाते हैं. ठीक है. फॉर ऑफिशियल पर्पस, मतलब मैं बड़ा ऑफिशियल बंदा हूँ, तो हम क्या करते हैं कि इंग्लिश को बोलना शुरू कर देते हैं. जैसे मैं अक्सर बेकन के कोट्स बोलता हूँ कि स्टडी सर्व्स डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी. अच्छा, ये जो फंक्शन है, इसको कहते हैं, ज़रा इसको लिख लें, इसको कहते हैं फैटिक पर्पस. PHATIC. मैं लिख देता हूँ इधर, फिर आपके लिए आसान होगा इसको समझ. अच्छा, ये सर्टन पर्पस होते हैं लैंग्वेज को जो इन्वॉल्व करने के. जब हम कोड मिक्सिंग करते हैं तो हमारे कोड स्विचिंग करते हैं या कोड मिक्सिंग करते हैं, उसके हमारे ख़ास पर्पस होते हैं, मकासद होते हैं. मतलब पहला पर्पस है डायरेक्टिव पर्पस. क्या पर्पस है फौजिया? डायरेक्टिव पर्पस है. ये है डायरेक्टिव, और इसके अलावा आपने बताया मैं बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ, फिर साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. अच्छा, एक है डायरेक्टिव पर्पस, इसमें लिखने इंक्लूड. लोग क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टिव पर्पस का मतलब ये है, मतलब डायरेक्टिव का मतलब ये है डायरेक्ट करना, किसी को डायरेक्ट करना, किसी को ऑर्डर देना, डू दिस और डू दैट, इसको कहते हैं वैसे डायरेक्टिव. डायरेक्टिव पर्पस
You want to direct, you want to give direction, you want to say something to other, you want to include someone, you want to exclude someone. यानी इसके सारे पर्पस होते हैं, इसके अंदर ही शामिल हैं, डायरेक्टिव के अंदर. मतलब हम दोनों बोल रहे हैं तो तीसरे बंदे को मैं चाह रहा हूँ कि वो इन्वॉल्व ना हो. हम पहले उर्दू में बात कर रहे थे तो फ़ौरन मैं उसको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो मैं आई स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश बिकॉज आई नो दिस पर्सन डज नॉट नो इंग्लिश लैंग्वेज. I started talking in English because I want to involve you in conversation and exclude that person. किसी बंदे को include या exclude करने के लिए directive purpose इस्तेमाल होता है, ये लिख लें. To include in conversation, लिख लिया सर. और exclude. Very good. चले आपने ये लिख लिया. दूसरा लिखें expressive function. ये आप लिख लें, आप लिख लें, मैं ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ शॉर्ट लिखूंगा. एक्सप्रेसिव फंक्शन. दे वांट टू शो द कनेक्शन विद सर्टन सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, आई एम टॉकिंग इन उर्दू and there are certain English people, they are over here, they are also sitting. I started talking in English language in a way to show that I have a connection with you. I know your culture and I know your language. I show association with them, that I'm also belong to your class. So whenever you show connection with certain people, for example, I know ये एक लैंग्वेज होती है जैसे राव बोलते हैं उर्दू की लैंग्वेज. तो I know their language and once the people they belong to Rao family, they come to me, I started talking in their language. They will consider home at me. मतलब they will consider a special love for me. They will say that he belongs to our caste, he is our fellow. They will speak freely with me because cultural level पे मैं assimilate कर जाऊंगा, मैं उनके साथ एसोसिएशन शो करूंगा. तो दिस फंक्शन इज नोन एज एक्सप्रेसिव फंक्शन. गॉट इट सर, गॉट इट. तीसरा और भी एक लेवल लिख लें, रिफरेंशियल फंक्शन. REFE और RENTIAL. ठीक है, रिफरेंशियल फंक्शन. रिफरेंशियल फंक्शन होता है फौजिया टू एक्सप्रेस आइडिया इजीली. मतलब सम टाइम ये होता है कि आप L1 में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, L1 आपको बोल रहे हैं आप, तो आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. आप बोल रहे हैं L2 में, इंग्लिश 2 में, इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है या आपकी फॉरेन लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ रहा है, तो वो आप फ़ौरन क्या करते हैं, आप L1 पे आ जाते हैं. यार मेरे लिए यही ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इर्तुगरुल गाजी जिसने ड्रामा बनाया, तो वो पाकिस्तान आया, उस बेचारे ने इंग्लिश बोलने की कोशिश की और उसे ना बोली गई. टर्किश उसे बड़ी अच्छी आती थी, तो उसने कहा यार मैं टर्किश में बोलूँगा, मेरा ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट करेगा. तो ये रेफरेंशियल फंक्शन है उसका. गाजी इर्तुगरुल क्या नाम है उसका, एंगन अल्तान क्या नाम है उसका. तो वो जब पाकिस्तान आया तो मैंने देखा टेलीविजन. हाँ सर, उनको नहीं आती ना, उनको उर्दू भी नहीं तो आती, वो उनकी बेचारे अरबिक को भी नहीं है, और ये जो टर्किश है ना, इनको इंग्लिश भी नहीं आती है. जब हम लोग भी इंग्लिश गए नहीं थे आती ना, उनको, तो हम लोगों को वहां पे कम्युनिकेट करने में इतनी प्रॉब्लम आती थी, हम इशारों में ही बस बातें करते थे उधर. तो वो बेचारा कहता है कि मैं भाई बोलूंगा अपनी टर्किश लेकिन लैंग्वेज में. पाकिस्तान से बड़ा प्यार है उनको, जीवे जीवे पाकिस्तान उनको आता है. अच्छा, फेटिक पर्पस, ये फेटिक फंक्शन एक होता है. अब ये फेटिक फंक्शन जो है ये मैं बड़ा इस्तेमाल करता हूँ अक्सर. व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, FATIC, फेटिक. फेटिक फंक्शन का मतलब लिखें इम्फेसाइज करने के लिए. सर्टन टाइम I usually emphasize on my points. People are not getting me, even people are not listening to me. I started talking in English language. Even sometime I'm talking in Urdu and I involve certain quotes from English language in a way to emphasize. मतलब to clear your point. एक बंदे को मैं कहता हूँ यार मेरी बात सुनना, यार मेरी बात सुनना, वो नहीं सुन रहा. फिर मैं कहता बात सुनना यार, वो नहीं सुन. Will you listen to me? Can you listen to me? तो मैं थोड़ा सा गुस्से में कहता हूँ Do you listen to me? Can you listen to me? तो I am emphasizing on my point. Study serves delight, ornament and ability. Sometime हम quotes बोल के लोगों को emphasize करते हैं. What though the field be lost, all is not lost.
our unconquerable will, the study of revenge and immortal hate. What else should not be overcome? The mind in itself can make hell of heaven and heaven of hell. O pit of the hell, receive thy new possessor, one who has brought mind never to be changed by I place love and this speech. मुझे ये ना इसकी Yes. मिल्टन की ये जो लाइंस हैं मुझे बहुत पसंद हैं. To reign is worth ambition, though in hell. मुझे बेकन बहुत अच्छा लगता है. वो कहता है कि uneasy lies on the head of those who wear its crown. It's a strange desire to seek power and lose liberty. कैसे एक एक बात को कैसे वो तोल के कहता है चिल्ड्रन स्वीटन लेबर एंड मेक द फॉर्चून मोर बिटर. कहता है जब इंसान के बच्चे होते हैं तो उसे मेहनत करने में मजा आता है, लेकिन वो बंदे की किस्मत को बुरा बना देते हैं. मतलब इंसान को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, फ्राइटेंड हो जाता है चांस रिस्क लेने से ना, रिस्क लेने से डरता है और वो प्रोग्रेस रुक जाती है उसकी, और वो बड़ा यूटिलिटेरियन पर्पस पे बात करता है. अच्छा, फिर एक और ये लिख लिया आपने एम्फेसाइज करने के लिए, फैटिक भी हो गया आपका क्लियर. आप ये सारे नोट कर लें जब आप कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग को, डायरेक्टिव फंक्शन, उसके बाद मैंने आपको बताया ये एक्सप्रेसिव फंक्शन है, रेफरेंशियल फंक्शन है, फैटिक फंक्शन. ठीक है, दीज आर द 4 फंक्शन ऑफ कोड स्विचिंग. हमें ज़रूरत पड़ती है. अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग. इमिग्रेशन इसका इशू है. इमिग्रेशन, आप एक मतलब आप रशियन हैं, यू आर रशियन एंड यू गो टू USA. रशियन इज डेफिनेटली योर फर्स्ट लैंग्वेज, बट नेटिव लैंग्वेज ऑफ USA इज इंग्लिश. You have learned Russian as a mother tongue, but at the same time you have learned native language over there, because the people they are talking in English, you got another language, second language. So sometime you will switch one language to another language. This is also cause of code switching and code mixing. ये भी cause बनेगी. फिर बाज़ औक़ात जॉब की नीड होती है. You are amongst the people, they are having lot of language, you need to learn language, you learn language, and working with the people you need to shift for them. You need for show status. You need to show with the people they are highly qualified. You sometime want to show association with them. You show yourself that I'm multilingual. I know many language. Sometime we show our status with language. Sometime for the job need. Sometime for immigration need. Sometime for the official purpose. Sometime you have to make speech in certain language. You have to switch from one language to another language. Sometime we use it as a crow, as a pigeon. Sometime for job need. कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि उनको आती ही मिक्सचर लैंग्वेज है. मतलब आप हमारे पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो वो एक क्रोल सा बना के क्रोल या पिजन लैंग्वेज बोलते हैं. वहाँ पे थोड़ी सी अरबिक मिला ली, कोई पंजाबी के लफ्ज़ मिला लिए, कुछ इंग्लिश के मिला के अपनी बात पहुँचा दी. और अरबिक पीपल, उनको कौन सी इंग्लिश आती है? वो भी वो वैसे ही होते हैं, वो समझ लेते हैं. वो बल्कि कहते हैं कि बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है पाकिस्तानी. अच्छा जी, मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन भी एक होता है, ये भी लिख लें. ये मैंने आपको नहीं लिखवाया अभी. मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन, मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन. मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन का मतलब लिखें हम किस लिए यूज़ करते हैं. L1 2 फॉर ट्रांसलेशन पर्पस. मतलब हम क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात ये होती है कि हमें एक L1 में बात की है तो अगला बंदा वो समझता नहीं है, वो कोई आपने कोई ऐसी बात कर दी है तो आप उसको क्या कर समझाने के लिए L2 में उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं. तो इसको कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन. फौजिया समझ आ गई? यू आर टॉकिंग इन L1 your native language. The people they are standing in front of you, I got it. they don't know. You need to translate for them so that they, as it happens with me, sir, when I'm taking Urdu class and I was giving them lecture in English Yes. on social study, and they were not understanding well. That's so what I did then, I started giving lecture in another language. Urdu very good. language.
then they got the these are the function, poetic function. फिर फौजिया एक होता है पोइटिक फंक्शन. कुछ लैंग्वेज होती हैं उसकी पोइट्री बड़ी अच्छी, मसलन अरबिक लैंग्वेज है, उसकी पोइट्री बहुत ज़बरदस्त है. मुझे नहीं आती है अरबिक लैंग्वेज इतनी, लेकिन जब मैं उसकी पोइट्री, उसका रिदम और उसकी वो राइमिंग स्कीम देखता हूँ ना, तो मेरा दिल तो करता है. मतलब सूरह यासीन को एक दफ़ा सुन लूँ तो मेरा दिल करता है मैं दोबारा फिर सुनूँ, उसकी राइमिंग स्कीम मुझे इतनी अच्छी लगती है. तो कुछ लैंग्वेज वैसे ही रिदम में होती है, जैसे इंग्लिश भी बड़ी रिदमिक लैंग्वेज है, इसके अंदर भी एक रिदम है, इसमें अच्छा लगता है. और कोई आप इसमें अगर आपने कोई बात करनी हो तो हम रिलेट कर देते हैं, कोई शेक्सपियर की कोई कोट बता दिया, उसका कोई स्टैंजा बता दिया, ठीक है, तो कोई मिल्टन का कोई स्टैंजा उठा के बता दिया, तो जैसे हम करते हैं पोइटिक फंक्शन, पोइट्री में कुछ पोइटिक अंदाज में कुछ कहना चाहते हैं तो हम उधर से फिर उठाते हैं, क्योंकि हमें उसके कुछ कोट्स आते होते हैं, तो वो हम बताते हैं. इट इज़ नोन एज पोइटिक फंक्शन. ये भी इसका एक फंक्शन है, लिख लें. होप यू गॉट द पॉइंट. कल मैंने आपको बताया था, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे खुद ही आप बता दें, वो बड़ा ज़रूरी है कल के टॉपिक वाला. लोकुशनरी एक्ट, इलोकुशनरी एक्ट, लोकुशनरी एक्ट और परलोकुशनरी एक्ट. सर वो आपने कहा था ना कि इसकी वो असाइनमेंट भी सेंड करेंगे, तो वो रात मैंने इतनी की हो थी, गई थी, अच्छा नहीं लगता फिर करता वो मैंने की थी, चेक नहीं किया आप? तो सर मैंने, आई एम वेरी सॉरी, मैंने लिखा नहीं है, मैंने सेंड करना है. मेरे पास 2-3 पॉइंट मैंने लिख लिए हुए हैं और मैं सेंड पता नहीं क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है. मैं करती हूँ आपको आज इंशाल्लाह. सर ये कोड स्विचिंग भी मैं आज आपको सेंड करूंगी, एक मैंने ये भी लिख लिया. और सर मैंने ना ये भी लिखा आपको है असाइनमेंट मैं दे दूंगा आपको, तो आप उसके ऊपर काम करना. मार्फोलॉजी करवाऊंगा तो मार्फोलॉजी की भी असाइनमेंट सारी साथ ही दे दूंगा इंशाल्लाह. कोशिश करूंगा कल मैं आपको मार्फोलॉजी भी करवा दूं. हाँ ये सर मैंने कोड स्विचिंग और ये बाइलिंगुअलिज्म, मोनो सॉरी सिमेंटिक पे, ये थोड़ा सा मैंने जो है ना ये आपको भेजना है काम करके, ताकि आप एक दफ़ा देख लीजिएगा. थैंक यू. अच्छा, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, फिर आपको बता देता हूँ, जो कि प्रैग्मेटिक और डिस्कोर्स एनालिसिस में दोनों में आप ये एडजस्ट कर लेना. मतलब वो हो सकता है वो आपसे पूछ ही रहे हैं कि डिफाइन लोकुशनरी, पर लोकुशनरी, इलोकुशनरी एक्ट. तो आम लोगों को ये पता नहीं है, अगर वो 100 दफ़ा भी ये पढ़ते रहें तो उनके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों ने खुद इस पर बहुत मार खाई है. व्हाट इज़ लोकुशनरी एक्ट, व्हाट इज़ पर लोकुशनरी एक्ट, व्हाट इज़ सर वैसे रिमाइंड करवा रही हूँ, क्या कहते हैं वो, उसका फोनेटिक हम लोगों ने कर लिया था, फिर वो आपने अपना जो है उसके बाद फोनोलॉजी और सर ये मॉर्फोलॉजी रहता है दोनों. लोकुशनरी एक्ट मुझे सारा पता है कि क्या क्या रहता है, आप जस्ट फॉलो करती जाएं इंशाल्लाह आपको. लोकुशनरी एक्ट, व्हाट इज़ लोकुशनरी एक्ट? मैंने आपको बताया था जो फिजिकल अटरेंस है, जो बंदा बोल रहा है, मतलब डिनर टेबल पे बैठा है और अब वो ये नहीं कह रहा कि मुझे साल्ट पकड़ा दो. वो किस तरह बात करता है? वो कहता है कि रिस्पेक्ट भी रहे, तो वो कहता है कि इज़ देयर साल्ट अवेलेबल ऑन डिनर टेबल. अब उसने जो अपने मुंह से अल्फाज निकाला है, फिजिकल अटरेंस की है, या जो सेंटेंस बनाया, उसको कहते हैं लोकुशनरी एक्ट. क्या कहते हैं फौजिया उसको? लोकुशनरी एक्ट. अब ये यानी खुद नहीं लिया और अटरेंस की है, दैट इज या, तो दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट लोकुशनरी एक्ट. यस. अब ये इलोकुशनरी का सुन लें. इलोकुशनरी एक्ट का ज़रा देख लें. इलोकुशनरी का मतलब होता है कि जो उसने बात की है उसके पीछे इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है उस बंदे की, जो इंटेंशन है, जो डिज़ायर है, उसको कहते हैं इलोकुशनरी एक्ट. और परलोकुशनरी का मतलब लिख लें, PERLOCUTINARY. परलोकुशनरी का मतलब लिखें कि जो उसने समझा, लिसनर ने उसको समझ लिया, वो बनेगा परलोकुशनरी. मतलब उसे पता तो चल गया लिसनर को कि नमक चाहता है, तो वो नमक उठा के अगर सामने कर देता है तो परलोकुशनरी एक्ट. इट इज़ अ रिजल्ट वट एवर पर्सन हैज़ सेड एन इंटेंशन. फिजिकल जो सेंटेंस बनाया, उसकी जो फिजिकल अटरेंस है, वो उसकी लोकुशनरी एक्ट है.
और इलोक्यूशनरी जो उसकी इंटेंशन थी बिहाइंड। या मैं कहता हूँ कि विंडो ओपन है, विंडो ओपन है तो सारे रेस्पेक्टेड बंदे बैठे हुए हैं, तो हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि देयर इज टू मच कोल्ड। डोंट यू थिंक टू मच कोल्ड, देयर इज टू मच कोल्ड। ये नहीं कहता कि शट द डोर, शट द विंडो, रादर आई एम सेइंग टू मच कोल्ड, टुडे इज टू मच कोल्ड। तो थोड़ा सा उसकी तरफ देख के ये कह दूं टुडे इज टू मच कोल्ड, तो जैसे ही कहूँ तो लोगों को समझ आ गया। यो मैंने अपनी मुंह से फिक्रा निकाला, सेंटेंस निकाला, लोक्यूशनरी। फौजिया अगला बताएं, इलोक्यूशनरी क्या है? जी सर, इंटेंशन इंटेंशन के विंडो बंद हो जाए, विंडो बंद हो जाए। लोक्यूशनरी और के विंडो बंद हो रहा है। फिर पर लोक्यूशनरी क्या हुआ, जो लिसनर ने समझा, समझ यानी लिया। आपने मुझे बताया कि देयर इज टू मच कोल्ड एंड आई गॉट इट दैट यू फीलिंग कोल्ड एंड आई शुड क्लोज द डोर। क्लोज, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, वो पर लोक्यूशनरी हो गया। ठीक है, लिसनर जो है मेरी इंटेंशन समझ गया। तो ये एक्ट जो है, ये लिंग्विस्ट थे, उन लिंग्विस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की कि महज यही नहीं है कि बोलना ही कम्युनिकेशन है या बोलना ही लैंग्वेज के अंदर आता है कि एक ही बंदा बोलता रहे। वो कहते हैं जी अगला बंदा उसे समझ भी रहा हो, उनके एक्ट्स जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हों, लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी, पर लोक्यूशनरी, पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन लैंग्वेज, और लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया और इससे ये चीज़ें डिस्कवर की। We'll also discuss some example of the code switching, code mixing. I have examples for you, and then we'll be discussing difference between spoken discourse and written discourse to finish our assignment. Remaining assignment of pragmatic, inshallah, we'll finish it. Sir, am I right? Am I right that I think that linguistic is not very lengthy course, but is just it based on understanding, है ना? ये वजह ना सर। अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, अगर इसकी समझ आ जाए तो ये कुछ भी नहीं है, अगर ना आए तो ये अब ये समझ सर नहीं आपने आता। ये जो लोक्यूशनरी एक्ट्स है ना, ये आपने कल बताए हैं, लेकिन आज मुझे अल्लाह का शुक्र है समझ आए हैं। लोक्यूशनरी एक्ट मुझे आज समझ में आया, इलोक्यूशनरी एंड पर लोक्यूशनरी। इंशाल्लाह समझ आएगा, डोंट वरी। जब हमारी इंटेंशन ही फौजिया ये है कि आपको समझ आ जाए और आप पास हो जाएं, तो इंशाल्लाह। यू कोड स्विचिंग, व्हाट इज़ कोड स्विचिंग? ये देखें, सम वर्क डिफाइन कोड मिक्सिंग एज द प्लेसिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ वेरियस लिंग्विस्टिक यूनिट, अफिक्सेस, वर्ड फ्रेज। मैं आपसे बोलता बोलता मैं ये कहूँ कि टुडे इज़ टू मच कोड, है ना, ऐसा है ना, मतलब आगे मैं उर्दू उसके अंदर शामिल कर दूँ, तो ये होगा कोड मिक्सिंग। मैंने थोड़ा सा फ्रेज़ उठा के उसके साथ लगा दिया, तो बाज़ औक़ात इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी स्वीट, है ना, तो हम थोड़ा सा उर्दू साथ मिला देते हैं। तो आज बहुत सर्दी है, इज़न्ट इट, थोड़ा सा उर्दू और उसके बाद इंग्लिश थोड़ा सा मिला के, तो ये है कोड मिक्सिंग। और ये अक्सर हमारी सोसाइटी में चलता है, लोग अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ आप शो ऑफ करना चाहते हैं, कुछ वो अपने कोई हिडन जो उनके अपने मकासद होते हैं उसके लिए लैंग्वेज को बोलते हैं, कुछ अपर क्लास से एक ताल्लुक़ शो करते हैं कि लोग ऐसा करते हैं, तो वो लोग उनको कॉपी करते हैं, मिडिल क्लास के लोग, अपर क्लास के लोग, फिर ये क्लासेस भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। ये डिस्कोर्स एनालिस्ट जो है इन चीज़ों को भी बड़ा पॉइंट आउट करते हैं। फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रामेटिकल सिस्टम विद इन द सेम सेंटेंस एंड स्पीच कॉन्टेक्स्ट, द कोड स्विचिंग इज द प्लेसिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ यूनिट। ये देखिए, मिक्सिंग ऑफ क्या चीज़ों को मिक्स करते हैं?